नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग इज बेस्ट में। लर्न पाइथन का ये वीडियो नंबर 8 है और आज का जो टॉपिक है डेटा हैंडलिंग, इसका ये पार्ट 2 है। टॉपिक में जाने से पहले आज का सुविचार जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, एक विचार लो और उस विचार को अपनी ज़िंदगी बना लो। उसी विचार के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी को जियो। तो आइए इस सुविचार के साथ अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज जो टॉपिक मैंने कवर किया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एज अ प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू। टुडे वी विल लर्न द ऑपरेटर्स एंड we will learn the arithmetic operator, assignment operator, augmented assignment operator, relational operator, identity operators, logical operators. So let's go. What are operators? The operators being carried out on data are represented by operators. The symbol that trigger the operation oblique action on data called operators, and the data on which the operation is being carrying out, the object of the operations are referred to as operand. So Python rich set of the operators comprises of these types of operators. One is arithmetic operator, second relational operator, identity operator, logical operator, bitwise operator, and membership operator. So let's go for the operators. First operator is arithmetic operators oblique mathematical operator. Let's discuss what is actually the operators. Operator is the symbols which can trigger some operations. So here we are talking about some arithmetic operation which can perform some arithmetic operations like plus for addition, minus for subtraction, asterisk for multiplication, slash for division, double slash for floor division, percent for remainder, and double asterisk for exponential. Unary operators are what? The operators that act on one operand are referred to as unary operators. जो एक ही ऑपरेंड पर ऑपरेशन को करे या ट्रिगर करे उसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे यूनरी प्लस और यूनरी माइनस, बहुत सिंपल है। अगर हम माइनस ए लिख रहे हैं इसका मतलब है कि वो नेगेटिव वैल्यू है, इट मीन्स माइनस ए। अगर माइनस ए की वैल्यू 5 है तो इट मीन्स -5 एंड -5 इज रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव वैल्यू। +4 अगर हम लिखते हैं या 4 लिखते हैं तो उसका बेसिक मीनिंग +4 ही होता है। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो दो ऑपरेंड्स पर कार्य करें। द ऑपरेटर दैट एक्ट अपॉन टू ऑपरेंड्स आर रिफर टू एज अ बाइनरी ऑपरेटर, लाइक a + b और 5 + 10 और a - b और a asterisk b, all are binary operator. Now let's see how this arithmetic operator will work. We can see in the Python ideally. Here I am taking very simple example. I am taking the variable a is equal to 10 and b is equal to 3. Now you can see all arithmetic operation I can perform in these two variable. Then it is very easy to understand us. A plus b, when I will write, it will give the result 13. A minus b, it will give the result 7. A asterisk b, it will give the result 30. A slash b, it will give the result in precision floating point number 3.333 up to the precision double precision floating point. So यहाँ पर जब हम दो इंटीजर वैल्यू को भी डिवाइड करेंगे तो भी वो फ्लोट में आएगा, ये हमें याद रखना है। अब अगर हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए है तो हम फ्लोर डिवीज़न यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ए डबल स्लैश भी जब हम करेंगे तो यहाँ पर ये सिर्फ इंटीजर पार्ट को डिस्प्ले करेगा और 10/3 करने पर जो इंटीजर पार्ट है, क्वोशिएंट पार्ट है, वो है 3, तो सिर्फ 3 डिस्प्ले होगा। अगर हमको रिमाइंडर डिस्प्ले कराना है, हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम a/b करेंगे। 10/3 करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1, तो ये डिस्प्ले करेगा 1। a एक्सपोनेंट b, it will shows 1000, यानी 10 to the power 3. a is 10, b is 3, that means is 10 asterisk b means 10 to the power 3 and it will shows 1000. So this is the way the arithmetic operator will work. Now we have to go for the next operator. The next operator is very important operator. It is an assignment operator, and Python has an assignment operator equal which assign the value specified on RHS to the variable
object on LHS of equal. That means a is equal to 10, where a is the variable and 10 is the value. So this is the RHS and this is the LHS format. We cannot write 10 is equal to a. That means if we are writing a is equal to a plus b, it is a very simple. A is equal to a plus b is correct. It is as per the rule. But if we are writing a plus b is equal to a, it is a semantic error. तो यहाँ पर हमको इस तरह से नहीं लिखना है. मगर ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर आप देख सकते हैं, हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कभी कभी इसको कहते हैं. a प्लस इक्वल टू बी का मतलब ही है a इज इक्वल टू a प्लस बी. तो लेट्स सी व्हाट इज ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड हाउ इट विल वर्क. इफ आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 3, if I am writing x plus is equal to y, the meaning is very simple. x is equal to x plus y, यानी कि x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 plus 3. x is equal to x minus is equal to y का मतलब हो जाएगा x is equal to x minus y. x asterisk equal to y का मतलब होगा x is equal to x multiply y. x slash is equal to y means is x is equal to x slash y. x double slash equal to y means x double slash is equal to x double slash y. x asterisk asterisk equal to y means x is equal to x asterisk asterisk y, यानी 10 to the power 3 हो जाएगा. x percent y equal to y means x is equal to x remainder y. आइए इसको आइडियली पर देखते हैं कि ये आइडियली पर किस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है. असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ वेरी सिंपल. आई टोल्ड इफ आई एम राइटिंग a इज इक्वल टू 10, it is a very simple assignment. If I will just entered a, it will give the value of a is 10. So but I cannot write like this because it will give the syntax error. I cannot assign the literal, so this is the semantics error. Then I told if I am taking b is equal to what example I have taken, y is equal to 3. So here I am taking a and b, so no problem. So a is equal to 10 and b is equal to 3 I have taken here. Then if I am writing a is equal to a plus b, it will give the value of a is 13. I can write similar way. I can write a plus e equal to b, that will give a is 16. Why it is 16? Now 13 plus 3, so it will given the result 16. Similar way, if I will write a minus equal to b, that will also give 13. Now a is equal to a minus b. Minus b means 3, so 16 minus 3 is 13. Now it is given a. Now if I am writing a is equal to asterisk equal to asterisk equal to b, means a yani 10 multiply b means 30. Now you can see 39, so it is showing 39. Now if I am writing, so first let's we check what is b actually. So b is 3 and a is here 39. So I am taking here a is equal to 10, then you can understand very well, and b is equal to 3 here, b is equal to 3. I can write augmented value asterisk equal to b. That meaning is a is equal to a into b. Now a is 30. Again I am assigning 10. Now value of a is again 10. So you can see here I can change the values. Similar way, if I am writing a double asterisk is equal to y, the meaning is equal to b means a is equal to a asterisk asterisk b means 10 to the power 3, and now you can see the value of a become 1000. So this is called shorthand assignment or augmented assignment operator. So assignment operator is also playing a very important role in operation. And what is this operator here? The operator is simple equal is the assignment operator here. Now we are going for another very important operator, relational operator. What is relational operator? In the term relational operator, relational refers to the relationship that values or operand can have with one another. Python provides 6 relational operator for comparing values. The relational expression results into the Boolean value
true and boolean value false if the comparison is false. So here relational operator will provide the result in a form of true and false, and basically it is called comparison operator. Here we have 6 relational operator: less than equal to, less than or equal to, double equal sign for equal, checking the equality, greater than sign for greater than equal means greater than or equal to, and exclamatory mark equal is called not equal to. Now you can see here is x is equal to 10 and y is equal to 20. So if I am giving here 10 less than y means 20, so it will give true because it is a correct statement. X less than equal to y, that is also true because x less than y, but it is not equal, but और लगा हुआ है बीच में, इसलिए ये true होगा. x greater than y, ये false होगा क्योंकि 10 greater than 20 नहीं है. x greater than or equal to y, that is also false because both the conditions are false. X double equal to y, that is also false, but x not equal to y is true. Now here you can see the string capital A is less than a, that also true because a का जो value है that is called ordinal value, and it is a ASCII value or Unicode value which is 65, और a का जो होता है वो होता है 97. ये हम देख सकते हैं. ORD एक फंक्शन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ORD एक फंक्शन है, ORD कैरेक्टर, और ORD के अंदर हम जो भी कैरेक्टर लिखेंगे उसकी हमें ASCII वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी. सो इफ़ आई एम राइटिंग हियर capital A is double equal to small a, that is also false as per the comparison operator. यहाँ पर एक चीज़ और है, आप इसको ध्यान से समझिएगा. यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है. 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 इज डबल इक्वल टू 0.3 जब हम करेंगे तो ये फॉल्स आएगा. ये क्यों फॉल्स आएगा, क्यों, क्या आप इसको बता सकते हैं? चलिए अगर मैं बता देता हूँ. जब हम इसको कैलकुलेट, चूँकि ये क्या है, एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन को जब हम कैलकुलेट करेंगे जो ये डबल प्रिसीशन में आ जाएगा और इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी. इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी जो डबल इक्वल टू 0.3 से डिफरेंट है, इसलिए ये आएगा फॉल्स. आइए इसको पाइथन IDLE पर चेक करते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है. सिमिलर x इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 10 और मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू 20. अपन ये सारा जो अपन ने अपने स्लाइड में देखा है उन सारे ऑपरेशंस को हम कर लेते हैं. चलो x इज़ लेस देन y, तो ये ट्रू है, तो ये हमको बुलियन ट्रू बताएगा. x ग्रेटर देन y, ये हमें फॉल्स बताएगा. x लेस देन इक्वल टू y भी हमें ट्रू बताएगा. x ग्रेटर देन इक्वल टू y हमें फॉल्स बताएगा. 4 ऑपरेटर हो गए हैं, अब 2 बचे हैं. x डबल इक्वल टू y, ये हमें फॉल्स बताएगा, बट x नॉट इक्वल टू y, ये हमें ट्रू बताएगा. तो ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर. मैंने कहा था कि हम स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं, तो चलिए आइए. कैपिटल A is less than small a and this will also true. Why? क्योंकि ORD हम अगर इस फंक्शन को यूज़ करें तो कैपिटल A की वैल्यू हम चेक कर सकते हैं कि ASCII वैल्यू क्या है, तो उसकी ASCII वैल्यू 65 है. और जब हम चेक करेंगे कि स्मॉल a की वैल्यू क्या है तो उसकी वैल्यू है 97, विच इज़ लेस देन 65 इज़ लेस देन 97. सो दैट्स वाई जो कैपिटल A है वो स्मॉल a से छोटा है और वो ट्रू रिजल्ट बता रहा है. इक्विवेलेंट भी हम चेक कर सकते हैं कि वेदर बोथ आर इक्वल और नॉट, तो आई थिंक बोथ आर नॉट इक्वल क्योंकि ASCII अलग अलग है, इसलिए यह फॉल्स बताएगा. सो दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर, जो हम देख सकते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर किस तरह से काम करता है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑपरेटर. द नेक्स्ट ऑपरेटर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर. And identity operator we have 2 operators here, is and is not.
the identity operator are used. This is the very special operator actually in Python, and this operator is previously not in any language like C++ or Java. We are not having any kind of identity operator. In Python we have a two identity operator, is and is not. Then what is the use of this operator? The identity operator are used to check if the both operand reference the same object memory. The identity operator compare the memory location of the two object and return the true and false accordingly. Very simple. इस ऑपरेटर है और अगर हम लिखते हैं A is B, तो अगर A और B दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंटिंग करते हैं, रेफरेंस करते हैं मेमोरी लोकेशन को, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू. अगर नहीं करते हैं तो रिटर्न करेगा फॉल्स. इसको आइए समझते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा. मान लीजिए कि वेरिएबल A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 10 है. दोनों ही ऑपरेटर के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो है 10. जब हम A इज़ B लिखेंगे तो ये ट्रू, बुलियन ट्रू दिखाएगा. अब हमने एक और वेरिएबल लिया है C इज़ इक्वल टू 20 पर. जब हम A इज़ C लिखेंगे तो वो फॉल्स बताएगा. हम किसी वेरिएबल के ऑब्जेक्ट की वैल्यू की मेमोरी लोकेशन को कैसे देख सकते हैं? हम ID से देख सकते हैं. सो ID इज़ द फंक्शन जिससे हम देख सकते हैं उसकी मेमोरी लोकेशन को. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. यहाँ पर देखिए, अगर S1 इज़ इक्वल टू ABC लिखा है और S2 इज़ इक्वल टू इनपुट लिखा है एंटर स्ट्रिंग, और हम सेम स्ट्रिंग एंटर कर रहे हैं ABC, और S1 इज़ इक्वल टू S2 लिख रहे हैं, डबल इक्वल टू लिख रहे हैं, तो ये ट्रू बताएगा. मगर जब हम S1 इज़ S2 लिख रहे हैं तो ये फॉल्स बताएगा. जबकि अगर वही ABC स्ट्रिंग को S3 में असाइन किया है हमने, और S1 इज़ S3 लिख रहे हैं, तो वो ट्रू बताएगा. वाई? बिकॉज द रीज़न इज़ देयर इज़ अ फ्यू केस ऑफ पाइथन क्रिएट्स द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इवन दो द बोथ स्टोर द सेम वैल्यू. तो यहाँ पर जब हम इनपुट कर रहे हैं S2 में, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए वो अलग मेमोरी लोकेशन बताएगा और S1 के लिए अलग बताएगा. मगर जब हम यहाँ पर हम असाइनमेंट, ये S1 इज़ इक्वल टू ABC असाइनमेंट है, S3 इज़ इक्वल टू ABC असाइनमेंट है, दोनों के ही ऑब्जेक्ट सेम है, इसलिए यहाँ पर S1 इज़ S3 ट्रू है. मगर जब हम कंसोल इनपुट कर रहे हैं तो S2 का जो ID है वो अलग होगा. आइए देखते हैं कि इस आइडेंटिटी ऑपरेटर कैसे काम करता है. पाइथन आइडियली ओपन कर लेते हैं. यहाँ पर हम ले लेते हैं A इज़ इक्वल टू 10 और B इज़ इक्वल टू 20. दोनों के लिए हमने अलग अलग हो गया है. C इज़ इक्वल टू 10 ले लेते हैं. चलिए, तो जब हम A इज़ C लिखेंगे तो ये हमें बताएगा ट्रू. मगर जब हम A इज़ B लिखेंगे तो ये हमें बताएगा फॉल्स. मगर जब हम लिखेंगे A इज़ नॉट B, तो ये हो गया निगेशन और ये अब बताएगा ट्रू. तो इस तरह से आइडेंटिटी ऑपरेटर काम करता है. तो आप देख सकते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर का भी अपना महत्व है. चलिए आइए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द अनदर ऑपरेटर. अनदर ऑपरेटर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर. इट इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर. इसको हम बुलियन ऑपरेटर भी कहते हैं कई बार. एंड वी हैव एक्चुअली द थ्री ऑपरेटर विच इज़ कॉल्ड द लॉजिकल ऑपरेटर. पाइथन प्रोवाइड थ्री लॉजिकल operators to combine existing expression. These are or and not. So we have a three operator or and not. यहाँ पर ये दो या दो से अधिक कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ होने वाला ऑपरेटर है. आइए सबसे पहले देखते हैं द और ऑपरेटर. द और ऑपरेटर कंबाइन टू एक्सप्रेशन विच मेक्स इट्स ऑपरेंड. पहला है द रिलेशनल एक्सप्रेशन एज ए ऑपरेंड. The OR operator evaluate to true if either its relational operands evaluate to true, false if both operands evaluates to false. तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि OR ऑपरेटर में कंडीशन तभी फॉल्स होगी जब दोनों ही एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट फॉल्स होगा. यानी अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो उसका रिज़ल्ट ट्रू होगा. जैसे एग्जांपल में हम समझ सकते हैं 4 डबल इक्वल टू 4 और 5 डबल इक्वल टू 8. मगर 4 डबल इक्वल टू 4 ट्रू है, मगर 5 डबल इक्वल टू 8 जो है वो फॉल्स है. मगर एक कंडीशन ट्रू है, इसलिए इसका फाइनल रिज़ल्ट होगा ट्रू. अगर हम इसकी बात करें 4 ग्रेटर देन 8, ये फॉल्स है, और
8 लेस देन 4 ये भी फॉल्स है। दोनों फॉल्स होने के कारण इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा फॉल्स। तो इस तरह से रिलेशनल एक्सप्रेशन ऑपरेशन को हम देख सकते हैं। नंबर्स ऑब्लिक स्ट्रिंग लिस्ट एंड ऑपरेंट in an expression x or y, if the first operand has a false, then return the second operand y as a result, otherwise return x। ये यहाँ पर हमको ध्यान से समझना है। यहाँ x और y में अगर पहला फॉल्स है, दूसरी वैल्यू फॉल्स है तो y रिटर्न होगा। अगर फॉल्स है और ट्रू है तो भी y रिटर्न होगा, और ट्रू है फॉल्स है तो x रिटर्न होगा, ट्रू है तो x रिटर्न होगा। यानी कि अगर 0 और 0 है तो 0 रिटर्न होगा, 0 और 8 है तो 8 रिटर्न होगा, 5 और 0.0 है मतलब 5 वैल्यू ट्रू है तो x रिटर्न होगा यानी 5 रिटर्न होगा। हेलो और स्पेस में हेलो रिटर्न होगा, स्पेस और a में चूँकि स्पेस का मतलब है वॉल्स तो a की वैल्यू है तो a वैल्यू रिटर्न होगी। दोनों स्पेस है तो कोई भी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, एक्चुअली रिटर्न होगा लास्ट तो वैल्यू होगी स्पेस। ए और जे है तो ए रिटर्न होगा। तो इस तरह से और ऑपरेटर वर्क करता है। और ऑपरेटर की कंडीशन यही है बेसिकली, दो या दो से अधिक कंडीशंस को जब हम इवेलुएट करते हैं तो कंडीशन का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी तभी ये फॉल्स आएगा, अदरवाइज इट विल गिव द रिजल्ट ट्रू। चलिए आइए नेक्स्ट ऑपरेटर पर जाते हैं। द नेक्स्ट ऑपरेटर इज AND operator. The AND operator combines the two expressions and make its operand the relational expression as operand. The AND operator evaluates to true if both of its operand evaluate to true। यानी कि अगर दो कंडीशंस को आपस में जोड़ा गया है तो वो ट्रू ही दोनों ट्रू होने चाहिए तभी रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स रिजल्ट आएगा। एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स रिजल्ट आएगा। इसकी ट्रूटोलॉजी यानी कि ट्रुथ टेबल को हम देखते हैं। यहाँ x और y कंडीशन है और x एंड y करने पर अगर x की वैल्यू f है फॉल्स है, y की वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, x की वैल्यू फॉल्स और ट्रू है तो फॉल्स आएगा, x की वैल्यू ट्रू और y की फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। यानी कि ट्रू कब आ रहा है? व्हेन x एंड y बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। यानी कि इसके लिए कंडीशन तभी ट्रू होगी जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 डबल इज इक्वल टू 4 एंड 5 डबल इज इक्वल टू 8। ये कंडीशन तो ट्रू है पर ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आएगा फाइनल रिजल्ट। 4 लेस देन 8 इज ट्रू and 18 is greater than 4, that is also true। तो both results are true, both expressions are true, so and लगा है इसलिए यहाँ पर finally true आएगा। नंबर स्ट्रिंग एंड लिस्ट एज ए ऑपरेंट्स अगर है तो हम किस तरह से इसको इवेलुएट करते हैं। इन एन एक्सप्रेशन x और y, if first operand has a false and then return the first operand x as a result, otherwise is written y। जैसे 0 एंड 0 है तो 0 रिटर्न हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर FF है तो FF में x यानी कि 0 की वैल्यू रिटर्न होगी। 0 एंड 8 है यानी कि आपकी पहली वैल्यू फॉल्स है, दूसरी वैल्यू ट्रू है तो भी x रिटर्न होगा यानी कि 0 वैल्यू रिटर्न होगी। 5 एंड 0.0 है यानी कि आपकी पहली वैल्यू ट्रू है, सेकंड वैल्यू फॉल्स है तो भी y रिटर्न होगा यानी 0.0 रिटर्न होगा। हेलो एंड स्पेस पे स्पेस रिटर्न होगा, स्पेस एंड ए पे स्पेस रिटर्न होगा, दोनों स्पेस है तो भी स्पेस रिटर्न होगा, मगर ए एंड जे है तो यहाँ पर जे वाली वैल्यू यानी कि सेकंड एक्सप्रेशन वाली वैल्यू रिटर्न होगी और उसका आंसर आएगा जे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पर। द नेक्स्ट ऑपरेटर इज अ नॉट ऑपरेटर। The Boolean logical not operator works on a single expression or operand. It is a unary operator. The logical operator negates or reserves the truth value of the expression following. If the expression is true or false, actually true or true, then expression is false and vice versa. The meaning is very simple here. Unlike the and or operator, it can return the number or the string or a list, the result as the result not operator return a boolean value true or false। the very simple thing is not 5 करने पर false आएगा क्योंकि 5 जो है वो true result है और true को हम false करेंगे तो false आ जाएगा। not 0 is a false and not false आएगा true।
then not minus 4, that is also true. Minus 4 is the true value, so not true will become false. Not 5 is greater than 2, that is also false, because 5 greater than 2 is true, and not true is become false. It is just inverting the result. If it is any expression we are having true, then if we are telling not true, that means it is a false. So it is actually inverting the result, and not 5 is greater than 9. 5 is greater than 9 is false, but not false will become true. So it will give the result like this. So not is actually the inverter, which is just converting our result, but the result will come in a form of true and false. Then a very important note here, the operator not has a lower priority than non-boolean operator. So not A is equal to B is interpreted as not A equal to B, and A double equal to not B is a syntax error. This is not the way we have to write A double equal to not B. This will give the semantic error. Let's see with the Python ideally our all logical operator. We should understand how the logical operator is works. So चलिए अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. हम सिंपल वैल्यू ले लेते हैं. A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20 और C इज इक्वल टू 30. यहाँ मैंने 3 वेरिएबल ले लिए हैं. अब मैं पहली कंडीशन लगा रहा हूँ A इज लेस देन B. चलिए सबसे पहले अपन और को टेस्ट करते हैं. तो A लेस देन B और A इज ग्रेटर देन C. ये दो कंडीशन मैंने लगाई है यहाँ पर, या चलो A लेस देन C भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पर. तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो ये ट्रू दिखाएगा. अब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पर भी और जो है वो ट्रू बताता है. जैसे मैंने A ग्रेटर देन C कर दिया, तो अब यहाँ पर 10 लेस देन 20 तो ट्रू है, मगर 10 ग्रेटर देन 30 तो फॉल्स है. मगर फिर भी बीच में और लगा हुआ है, तो ये हमें बताएगा ट्रू. अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, उसी केस में ये हमें बताएगा क्या, फॉल्स. जैसे B इज लेस देन A और C इज लेस देन A. ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स है. ना ही 20 लेस देन 10 है, ना ही 30 लेस देन 10 है, इसलिए ये बताएगा फॉल्स. तो और इस तरह से वर्क करता है. ठीक इसी तरह अगर हम कोई भी वैल्यू दे रहे हैं और के साथ 0 और 5, then it will give the result 5. Why? Because the 0 is false but 5 is true. So 0 and 5 the value will come, लास्ट वाली वैल्यू आएगी 5. ठीक, अगर इसका अपोजिट कर देंगे तो अपोजिट वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमको पहले x की वैल्यू यानी कि 5 वाली वैल्यू वो पहले बता देगा. सो इस तरह से ये और ऑपरेटर वर्क करता है. एंड ऑपरेटर के लिए मैंने क्या कहा, व्हेन ऑल कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली ट्रू, यानी किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पर ट्रू रिजल्ट नहीं आएगा. जैसे A इज लेस देन B एंड A इज लेस देन C. दिस इज ट्रू क्योंकि 10 इज लेस देन 20 एंड 10 इज लेस देन 30, सो इट विल गिव द रिजल्ट ट्रू. बट अगर एक कंडीशन भी गलत हुई, A लेस देन B इज ट्रू, बट इफ आई एम राइटिंग A is greater than C, then this is false, so it will give the result false. So when true and will give the condition, and will give the condition when all the conditions are true. Now it's a very simple. अगर मैंने लिखा है A double equal to B, ये भी एक कंडीशन है, and B double equal to C, both the conditions are false, this is also false. So ये भी false है. मगर आइए अब अपन नॉट ऑपरेटर देखते हैं. तो मैंने कहा नॉट A इक्वल टू B एंड नॉट B डबल इक्वल टू C. अब अगर हम इसको इवेलुएट करें तो सबसे पहले इवेलुएट होगा A डबल इक्वल टू B जो है फॉल्स, मगर नॉट फॉल्स की वैल्यू हो जाएगी ट्रू बिकॉज इट इज़ अ इन्वर्टर. फिर नॉट B डबल इक्वल टू C, B डबल इक्वल टू C इज़ फॉल्स, but not false is true, and true will become a true. So this will give the result true. It's a very simple thing when we are negating the operator like that. If we are writing A is greater than B, A is greater than B is false, 10 is greater than 20 is false, but not false will become true. So this is
a negative or invert operator which can perform the so many different operation in when we are giving the conditional based programming. So this is a operator which we can understand what is the meaning of operator and how the operator is working. I think whatever today I teach you learn, and I think you can now understand what is operator and how the operator will work. So आज के लिए इतना ही. आशा करता हूँ कि ऑपरेटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग इज़ बेस्ट एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.